Hello, my dear students. Welcome to your science class. This is part 3 of garbage in and garbage out. And in this particular video, we will see about plastics. Then we'll discuss whether plastic is boon or curse for us. Then after that, we'll see ill effects of plastics. After that, we'll see what is bioplastic. In the last we will discuss assignments. Okay, so let's start with the plastic. You are very much aware with this word, what is plastic. So plastic is a material consisting of a wide range of synthetic or semi-synthetic compound that are malleable and can be molded into solid objects. Malleable means the things which spread, जो बढ़ती है, जो फैलती है. Okay, and plastic can be recycled, reused, colored, melted, rolled into sheets or made into wire. Okay, so these are the qualities of plastic. It can be recycled, it can be reused, it can be colored, it can be melted, it can be rolled into sheets or made into wire. Okay, so these are the characteristics of a qualities. That's why it is very useful for us in variety of ways. Okay, at the same time it is cost effective, it is very cheap. So plastic is non biodegradable and poses major health hazard for animals including human beings also. Okay, so these were the benefits of plastics, but here in this line you can see how harmful it is for all living organisms. Okay, we'll discuss about it. So first we are going to discuss about whether plastic is a boon or curse, and we can discuss it about whether after knowing the what are the uses of plastics and how it is harmful. Based on that you have to decide whether plastic is boon or curse. ओके आपको इस बात को बताना है कि प्लास्टिक बोन है या कर्स है, ये आप बताएंगे. ओके, हम डिस्कस करते हैं इसके यूज़ को, इसके इफ़ेक्टिवनेस को, इसके हार्मफुलनेस को, हम दोनों पहलुओं को देखेंगे. ओके, सो द प्लास्टिक प्रॉब्लम इज माउंटिंग डे बाय डे. अ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्लास्टिक इज थ्रोन अवे केयरलेसली on the street and in water bodies, and such irresponsible disposal of plastic can cause a number of problems. What are those problems? Animals and birds alike in search of food end up consuming some amount of plastic, due to which many of them end up choking on these. बहुत सारे एनिमल्स हैं, बहुत सारी चिड़ियाँ हैं जो जब भोजन की तलाश में निकलती हैं, तो अगर गलती से कभी प्लास्टिक उनके मुंह में जाता है तो क्या करता है, उनके गले में जाके फंस जाता है और फाइनली क्या होता है, गला उनका जो है वो चोक कर जाता है और वो सांस नहीं ले पाती या और उसे निगल नहीं पाती भोजन को. तो इसकी वजह से क्या होता है, फाइनली उनकी डेथ हो जाती है. तो यहाँ से हम एक बात देखें और चीज़ों को देखा जाए. ऑल्दो प्लास्टिक बैग्स सीम्स कन्वीनियंट टू स्टोर फूड आइटम्स, कंज्यूमिंग दीज आर वेरी हार्मफुल टू आवर हेल्थ. हर चीज़ को हमने प्लास्टिक में पैक कर दिया है, चाहे वो ठंडी चीज़ हो, चाहे गर्म चीज़ हो, चाहे नॉर्मल चीज़ हो, कोई भी, हमने सबको प्लास्टिक के बैग्स में पैक कर दिया क्योंकि ये बहुत आसान है. लेकिन आपको पता है कि कभी भी कोई गर्म चीज़ जब प्लास्टिक में रख के यूज़ करते हैं तो वो हमारे लिए कितना नुकसानदायक है. इवन ऐसे भी प्लास्टिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है. तो हमने क्या देखा और आगे देखेंगे कि इट गेट्स वर्स when dirty and thrown away plastic bags are reused upon mere dusting and washing them, which is also very harmful. आपको पता है कभी कभी क्या होता है, हम जल्दी जल्दी में रहते हैं और कोई पुरानी प्लास्टिक बची हुई रहती है, उसमें हम अपना सामान रख लेते हैं और रख के फिर हम उसका यूज़ करते हैं. तो पहले से ही प्लास्टिक अनहाइजेनिक है और उसके बाद फिर से हम जब किसी चीज़ों को फिर से रीयूज़ करते हैं, बस हल्का सा झाड़ लिया, साफ़ कर दिया बस, तो ये चीज़ें बड़ी नुकसानदायक होती हैं. सो वी नीड टू बी वेरी माइंडफुल when we are using plastics or any material made up of plastic. So upon burning or heating, plastic gives rise to toxic and dangerous fumes and gases which can potentially cause cancer in human.
आप ये सोचिए कि प्लास्टिक को हम जला देंगे या इसको ख़त्म कर देंगे, तो जब जलाते समय आप देखेंगे कि बहुत ही जहरीली गैस निकलती है, और वो अगर लॉन्ग टर्म में हम उसके कांटेक्ट में रहते हैं तो बहुत सारी सांस की बीमारियां और फाइनली हमें कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं प्लास्टिक के साथ। और आगे देखें कि केयरलेस डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक ऑन रूट्स आल्सो एंड अप चोकिंग द सीवर एंड ड्रेनेज सिस्टम। नालियाँ जो है वो जाम हो जाती हैं। ओके, अगर ऐसे ही हम फेंकते हैं तो प्लास्टिक वाइल वेरी हार्मफुल फॉर इन्वायरमेंट हैज़ बिकम अ वेरी इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ, and hence it becomes all the more difficult to replace or in some cases even cut back on our plastic consumption। ये प्लास्टिक की इतनी सारी यूज़ हैं कि इसको हम ये सोचें कि प्लास्टिक को नहीं यूज़ करेंगे तो तो वी डोंट हैव दैट मच अल्टरनेटिव फॉर दैट, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट विदाउट प्लास्टिक आवर लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं है। लेकिन इस लाइन को पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि वास्तव में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि प्लास्टिक की मदद से हम करते हैं, ये बात सही है। लेकिन हमको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि जिस चीज़ का हम यूज़ कर रहे हैं जो प्लास्टिक की बनी हुई है उसको फाइनली डिग्रेड करना, डिकम्पोज करना, इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। So be mindful while you are using plastics. So plastics have a lot of characteristic feature which give an edge over its metal counterparts। बहुत सारी यूज़ हैं इसके, बहुत सारी यूज़। आप जानते हो कोई भी पैकिंग हो, किसी चीज़ को बांधना हो, ऐसे हल्की चीज़ों को रख के कैरी करना हो, तो ये सारी चीज़ें प्लास्टिक से बड़ी आसानी से हो जाती हैं। इवन बाइक्स बन रही हैं आजकल, गाड़ियाँ बन रही हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि प्लास्टिक से बन रही हैं और कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, पैसा कम लगता है, इसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है, तो हम यूज़ करते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम इट्स वेरी हैज़ार्डस, वी नीड टू बी वेरी वेरी माइंडफुल। हियर यू कैन सी व्हाट आर द मेजर इल इफेक्ट ऑफ द प्लास्टिक। सी ऑल diagrams. Here you can see in this particular diagram you are seeing that a hen is there along with that chicken। तो ये छोटे छोटे ये या प्लास्टिक फेंके हुए हैं, ये जब खाते हैं तो इनके लिए नुकसानदायक है क्योंकि ये चोक कर देता है। यहाँ आप देख सकते हैं ड्रेनेज सिस्टम को एकदम चोक कर दिया, इसको साफ़ करने की ज़रूरत पड़ रही है। यहाँ आप अच्छे से देख रहे हैं डक इज़ देयर, और इसके साथ क्या हुआ है ये बताने की ज़रूरत है कि किस तरीके का नुकसान है, आपको खुद समझ में आएगा। एंड फाइनली इफ़ यू थिंक दैट आई एम गोइंग टू बर्न द प्लास्टिक एंड इट विल बी ओवर, सो ऐसा भी नहीं है, इट विल पोल्यूट द इन्वायरमेंट। ओके, ये जो गैस देख रहे हो आप वाइट कलर की निकल रही है, वेरी डेंजरस, वे हाईली पॉइजनस गैस। So these are the major ill effect of the plastic। Another one you can see here, the cows are dying because of plastic consumption। ये जाके उनके गले में फंसता है, पेट में जाके पॉइजन क्रिएट करता है, बहुत सारी किसी भी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता। तो फाइनली व्हाट हैपन्स, इट किल्स ऑल द एनिमल्स हु कंज्यूम इट। ओके, तो ये है इसका नुकसानदायक। द बेटर अल्टरनेटिव इज़ possible nowadays is bioplastic। So we are going to discuss about bioplastics। So bioplastic are the plastic materials produced from renewable biomass sources such as vegetable fats and oils, corn starch, straw, wood chips, sawdust and recycled food waste items। Okay, so these are the things from which we are able to make bioplastics। So bioplastic can made from agricultural byproducts by using microorganisms। So bioplastics are usually derived from sugar derivatives। What are those sugar derivatives? These are starch, cellulose, lactic acids। So these are the materials by which we can make bioplastics। And what are the benefits of bioplastics? We will see here। So common plastics such as fossil fuel plastic, जो कॉमन प्लास्टिक है उसको हम फॉसिल फ्यूल प्लास्टिक भी बोलते हैं या पेट्रो बेस्ड पॉलीमर्स भी बोलते हैं, आर डेराइव्ड फ्रॉम पेट्रोलियम आर नेचुरल गैसेस। ओके, लेकिन बायोप्लास्टिक को मैंने बताया कि दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज, बायोडिग्रेडेबल सोर्सेज। ओके, तो क्या बेनिफिट है, बायोप्लास्टिक टेक 3 to 6 months to be decomposed fully as opposed to the several hundred years taken by their synthetic counterparts। ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है
कि ये डिकम्पोज हो जाता है। बायोप्लास्टिक क्या करता है, डिकम्पोज हो जाता है। और जो नॉर्मल पेट्रो बेस्ड प्लास्टिक्स हैं, फॉसिल फ्यूल प्लास्टिक हैं, इनको कितने साल लग जाते हैं, उसके बाद भी ये सही से डिकम्पोज नहीं होता। अगर होता भी है तो बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट निकालता है, हार्मफुल गैसेस निकालता है, जिससे कि इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा पॉल्यूट होता है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। यू हैव टू थिंक which plastic is better, bioplastic or normal conventional plastics, and how do you think it is better? It is there in assignment. तो आपको बताना है कि how you can reduce the use of the plastic. Write in comment box and let me know how you can decrease the use of plastic. You are welcome. Okay, so you have to make note of it and you have to tell how do you think that bioplastics are better than conventional plastics. Okay, so these are the resources. Thank you for watching. Jai Hind, Jai Bharat.